Okay, so now we are moving from the Diary of Annie Frank, that is chapter number 4, and it is written by Annie Frank. Why? Because it's taken from the Diary of Annie. Okay, Annie की एक डायरी थी, उसी में से ये एक्सट्रैक्ट हमें यहाँ पे दे दिया गया है. That is from the Diary of Annie Frank. And as you all know, it was a big novel. The diary which she wrote got published by her father and as a book, and it was named as From the Diary of Annie Frank, and it is being studied as a novel in your senior classes. जब भी आप इंग्लिश की लाइन में आप अपने सीनियर क्लासेस के अंदर पहुंचते हो, so there is a novel that is From the Diary of Annie Frank, and it was a real diary of Annie that was later on published by her father. उसके फादर ने इसको पब्लिश करवा दिया था because she wrote this diary in a very, we can say, difficult and different kind of circumstances. So after she left this world, तो उसके फादर ने क्या किया, उस डायरी को पब्लिश करवा दिया. ओके, so in the form of a book, and that book was named From the Diary of Annie Frank, and from that हमें एक एक्सट्रैक्ट मिला है यहाँ पे पढ़ने के लिए. So now let us see the chapter sketch of this chapter. तो आपको उसका chapter sketch से आपको उसके basics जो हैं वो आपको clear हो जाएंगे, and after that we will take the chapter. So just listen it carefully because बहुत सारा chapter तो आपको उसी से समझ में आ जाएगा. On June 12th, it is given over here. You can see on the first page. It's given on June 12, 1929. Annie Frank was born at Frankfurt in Germany, at the place Frankfurt, which was in Germany. In 1933, being Jewish born, Annie was a Jew. Okay, by religion she was a Jew. And Jews का हमें पता है, Jews ने बहुत torture जो है वो सहन किए हैं एक टाइम पे. ठीक है, and being a Jewish born, she had to immigrate to Amsterdam to escape the oppression and cruelty. Jews have always been addressed to cruelties and always been have a victim of the oppression by the other countries, we can say. So Jewish born थी, so that is why she had to immigrate to Amsterdam just in order to escape the oppression and cruelties. But soon it was occupied by Germany and their sufferings continued for the Jews. But soon जहाँ पे वो अभी immigrate कर रहे थे, that place was also occupied by the Germany and their sufferings continued to another level. Okay, so now what happened? जो freedom थे उनके, that was restricted. They were tortured and many were put to death. जो भी Jews उनकी Germans की पकड़ में आते थे, they used to caught hold of them, they used to take them to the torture camps. वो उनकी freedoms को restrict करते थे, उन्हें torture करते थे, and उनको कहाँ पे भेज देते थे? They were put to death. And fleeing the Nazi persecution of Jews, Annie की जो family थी ना, went into a hiding. तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अब इन्होंने क्या किया, एनी की फैमिली एक हाइडिंग में चली गई. हाइडिंग इज सम सीक्रेट प्लेस. ठीक है, तो जब ये चीजें होती थी ना, तो सबके घरों में या सबके ऑफिसेज में कहीं ना कहीं ऐसे सीक्रेट चैम्बर्स होते थे जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं होता था, एंड देखने में वो विजिबल भी नहीं होते थे. समबडी कांट इमेजिन कि यहाँ पे एक सीक्रेट चैम्बर जैसा कुछ हो सकता है. So they also went to a hiding in July 1942, and they were in hidden room in the father Otto Frank's office building. अब now Annie के father का नाम क्या था? The girl is named Annie Frank and her father is named Otto Frank. ठीक है, तो उनके ऑफिस बिल्डिंग के अंदर हिडन रूम्स थे, and the family went into those hidden rooms to hide. Later, the Margaret थी, Annie's elder sister. Now keep on noting it down somewhere, and or either you have taken books या keep it note down in your mind. ये characters आ रहे हैं chapter के slowly and slowly. अभी तक we have come to reach to 3 characters. That is one Annie Frank, father Otto Frank, and now the latest one is Margaret. That is the Annie's elder sister. And Annie was transported near Hanover in Germany. So इनको यहाँ पे भेज दिया गया. On her 13th birthday to Hanover in Germany, and on her 13th birthday, Annie का 13th birthday आ गया है. Annie Frank के parents ने क्या किया? They gave her a diary. उन्होंने उसको एक डायरी गिफ्ट की, and diary was so close to her heart. She got so excited and named the diary. और उसने अपनी डायरी को क्या नाम दिया? किटी.
मैक्सिमम ऑफ यू एंड मी ऑल्सो, आई थिंक वी हैव आवर ओन डायरीज, पर्सनल डायरीज, एंड हमें जब भी समय मिलता है हम उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखते हैं. वी कीप ऑन नोटिंग समथिंग. हमें रेगुलर डायरी की हैबिट नहीं है, बट यस व्हेन समथिंग स्पेशल हैपेंस एंड समथिंग डिफरेंट हैपेंस, कोई ऐसी स्पेसिफिक मेमोरी होती है, दैट वी यूज टू राइट. आई ऑल्सो कीप अ डायरी, बट मैं ऐसा नहीं है कि आई हैव टू राइट अ डायरी डेली, मुझे डेली लिखना है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है. समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए दैट आई विश टू राइट, सो आई पुट डाउन द डेट एंड मैं उसको लिख करके छोड़ देती हूँ. सो मेनी ऑफ यू मस्ट ऑल्सो हैविंग दिस हैबिट. आप में से भी बहुतों की ऐसी कुछ हैबिट होगी. एंड वी ऑलवेज गिव अ नेम टू आवर डायरी, बिकॉज डायरी को ना हम एज अ बेस्ट फ्रेंड मानते हुए डायरी के अंदर अपनी सारी बातें, सारे थॉट्स लिखते हैं. वी टेक डायरी एज अ बेस्ट फ्रेंड. So on her 13th birthday, Annie's father or parents gave her a diary, and she was also very excited. And what she named the diary? She named it Kitty. She had a complete strange experience for diary. उसका अपनी डायरी के लिए बहुत ही strange experience था. And what was the strange experience? Strange experience क्या था? Strange experience उसका ये था कि वो डायरी में अपनी रेगुलर की चीजें लिखती थी. एंड शी फाउंड समथिंग फॉर हर सेल्फ टू पोर इन हर थॉट्स. कितने सारे थॉट्स होते थे ना, वो अपने सारे थॉट्स को वहां पे लिखती थी, एंड अपने सारे सीक्रेट्स भी शेयर कर लेती थी डायरी के साथ में. इट वॉज नॉट नियरली अ डायरी, इट वॉज नियरली, मतलब वो उसकी सिर्फ डायरी नहीं थी, वी कैन टेक इट एज अ ट्रू कंपेनियन फॉर एनी. वो एनी के ट्रू कंपेनियन की जैसी थी. उसने अपना डायरी लिखना शुरू किया एंड इंट्रोड्यूस हर फैमिली मेंबर्स, स्कूल एटमॉस्फेयर, एकेडमिक ग्रेड, फ्रेंड्स एंड ऑल द बॉयज एट द स्कूल. एनी ने अपनी डायरी को सब कुछ बताया. उसको ऐसा लगा जैसे दिस डायरी इज माय न्यू कंपेनियन नाउ, एंड उसने अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसके साथ में शेयर की. एंड विद इन अ मंथ शी फेल्ट, उसने ऐसा फील किया एज इफ द होल लाइफ हैड अंडरगॉन अ सी चेंज. जैसे पूरी जो लाइफ है ना वो हैज अंडरगॉन अ सी चेंज. एंड लेटर ऑन जो रीडर्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड नो इट एज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. एंड लेटर ऑन वी कैन सी, जो रीडर्स थे ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो जानते थे नो इट एज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. एनी बिलीव्ड, एनी ने बिलीव किया, एनी ऑलवेज यूज्ड टू बिलीव दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. एनी को ऐसा लगता था, अब समटाइम्स आप हो, है ना, आपको मैं समझाई जा रही हूँ, या आपको मैं रोज बहुत सी चीजें बताती हूँ, वन डे यू विल गेट इरिटेटेड, और थोड़े समय के बाद में ना पेशेंस नहीं रहेगा. आप क्या बोलोगे, बस यार प्लीज स्टॉप इट, अब इससे ज्यादा नहीं सुनना. बट व्हाट हैपेंस, जो पेपर होता है ना उसमें बहुत पेशेंस होता है. आप पूरे रजिस्टर पे ले लो, सुबह से शाम तक आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, आप ही थकोगे. रजिस्टर या पेजेस आपको कभी भी नहीं कहेंगे स्टॉप राइटिंग, ओनली आई एम टायर्ड ऑफ इट, कभी भी नहीं. So Annie always says that yes, paper has more patience than people. लोग आपकी बात इतना नहीं सुनेंगे, पेपर सुन लेगा. तो इसीलिए हम सब कुछ पेपर को, दैट इज हम अपनी डायरी के साथ सब कुछ शेयर करते हैं, हम उसको सब कुछ बताते हैं. She also thought that diary would have more persistence. उसने ये भी सोचा कि डायरी जो है ना वो और ज्यादा persistent होती है. To listen, वो सुनती है बहुत ध्यान से डायरी, and understand to her trouble. और परेशानी को भी समझती है हमारी डायरी, हमें ऐसा लगता है. बट यू शुड हैव योर वेरी क्लोज फीलिंग्स कनेक्टेड टू योर डायरी. एंड हाउएवर वी कैन से शी कुड entrust more in her close diary than in people. एंड इंटरेस्ट होता है उसका बहुत क्लोज डायरी एंड पीपल में. एंड शी एक्सप्लेन डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ हर लाइफ स्टोरी. She talked about her love for her grandfather, love for her teacher, and her teacher's advice and comments for her, which she gets from all the people. And in fact, उसकी जो grandmother थी, whom she loved so much, she fell ill and died in 1942. That incident is also mentioned in the diary. So Annie की जो किट्टी थी ना, Annie की जो डायरी थी, she was very, very, very close to her diary. And Annie wrote her diary about the result day. अब हम भी डायरी लिखते हैं तो रिजल्ट डे तो हम भी सबसे पहले बताते हैं. So Annie also write about the result day. She was tensed and frightened, कि मैं बहुत डरी हुई थी. Her mathematics teacher remained annoyed with her. Mathematics teacher हमेशा उससे गुस्सा रहते हैं. She talked too much, क्योंकि एनी को बहुत बोलने की आदत है. Obviously जो बच्चा बहुत बोलता है, unnecessarily डिस्टर्ब करता है क्लास को, टीचर्स इससे थोड़ा annoyed हो जाते हैं. She was asked to write an essay. उसे एक बार वर्क मिला to write an essay on a chatterbox. ठीक है, चैटर बॉक्स पे, चैटर बॉक्स समझते हो, लिखना. और ये उसको क्यों लिखने को मिला था, एज अ पनिशमेंट.
लाइक सपोज हमारी क्लासेस चल रही हैं, या सपोज हम हैं, हम अभी आपको डेली कह रहे हैं सेंड द वर्क, सेंड द वर्क, सेंड द वर्क, सेंड द वर्क, बट स्टिल मेनी ऑफ यू आर नॉट सेंडिंग। एंड अब मुझे पता चल जाए कौन कौन है, अगर सपोज आई पॉइंट आउट दैट पर्सन एंड आई से दैट योर टुमारोज एक्टिविटी इज राइट अ पैराग्राफ ऑन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉट डूइंग योर होमवर्क, तो ये क्या होगा, एक पनिशमेंट होगा। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है, जो उसको एक चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखने को दिया गया एज अ पनिशमेंट बिकॉज शी कीप ऑन टॉकिंग एंड चैटिंग ऑल द टाइम। ठीक है, Annie wrote that she had inherited the quality from her mother. Annie ने क्या लिख दिया अपने essay के अंदर में, it was very funny that Annie wrote, Annie ने लिख दिया that उसको ये chatting की ये जो आई है ना, chit chatting जो वो करती रहती है, she is a chatterbox just because of her mother, ये quality उसने अपनी mom से inherit की है। And she continued on chatting in the class and Mr. Kissing जो थे उन्होंने again gave her an essay जिसको उन्होंने नया नेम दे दिया। एंड व्हाट वाज द नेम, क्वैक क्वैक क्वैक, दिस इज अनदर समथिंग इरिटेटिंग, क्वैक क्वैक क्वैक, तुम हमेशा क्वैक क्वैक करती रहती हो, सो यू राइट एन एसे ऑन दिस। एंड शी वाज हेल्प्ड बाय हर फ्रेंड सैनी टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक। अब नाउ विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड उसने लिखा। तो अभी यहाँ पे एक और कैरेक्टर आ गया है, दैट इज मिस्टर केसिंग। ठीक है, एंड उसने अपने उसके अंदर एक बहुत ही, जब उसको ऐसे लिखने के लिए दिया गया ना, शी रोट अ वेरी हार्ट रेंचिंग स्टोरी अबाउट अ फादर डक हु हैड किल्ड हिज बेबी डकलिंग्स ओनली बिकॉज द रीजन दे क्वैक्ड टू मच। एंड शी रोट अ स्टोरी, उसने बोला कि एक ये फादर डकलिंग की एक कहानी है, फादर डक की। उस फादर डक ने अपने सारे डकलिंग्स को किल कर दिया जस्ट बिकॉज किया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। एंड फादर बीइंग सो इरिटेटेड कि फादर ने अपने सारे चिक्स जो थे उनके, जो उनके डकलिंग्स थे, उनको ही उन्होंने किल कर दिया। एंड दिस वाज रियली वेरी हार्ट रेंचिंग स्टोरी। एंड ये रीड करने के बाद में उनके जो मैथमेटिक्स टीचर थे ना, मिस्टर केसिंग, उन्होंने एनी की तरफ अपना एटीट्यूड चेंज किया। ही थॉट कि भाई मैंने इस बच्ची को ऐसा बोल दिया है, राइट ऑन क्वैक क्वैक क्वैक, एंड शी हैज गिवन मी सच अ स्टोरी, तो बच्ची जो है वो परेशान हो रही है। एंड he changed his attitude for Annie and stopped punishing her thereafter. And after that, he didn't punish her anymore. And moreover, he himself had started cracking jokes in the class. And moreover, वो होता है ना, हम तो नहीं सुधरेंगे, हम तुम्हें भी बिगाड़ देंगे। तो एनी तो नहीं सुधरी, एनी अपने टीचर को ही खराब कर दिया। एंड वो टीचर जो एनी को चुप रहने के लिए कहता था, नाउ दैट टीचर हिमसेल्फ वो बच्चों को जोक क्रैक कर करके सुना रहे थे। तो इस तरीके से ये एनी की डायरी है। तो बहुत से इंसिडेंट है, जब आप इसकी नॉवल देखते हो, आप इसका यूट्यूब पे आप इसका कोई वीडियो देखना, ठीक है, पूरा फुल वीडियो आप इसका चेक करो, आप इसकी नॉवल को निकाल के आप इसकी नॉवल रीड कर सकते हो। बहुत अच्छे इंसिडेंट्स हैं इसके अंदर, पूरा का पूरा वो डिस्क्राइब किया गया है कि एनी जब हाइडिंग में थी बहुत समय के लिए, उनके साथ और कौन सी फैमिली हाइडिंग में थी, उनके पास हाइडिंग में खाना कैसे आता था, वो लोग हाइडिंग में कैसे रहते थे, कैसे सोते थे, कैसे टाइम पास करते थे, उनके पास बाहर की इंफॉर्मेशन कहाँ से आती थी, उन्हें कुछ जरूरत होती थी तो उनकी जरूरत पूरा कौन करता था। So all these things are mentioned in her diary, but here we have only a small extract that is from the diary of Annie Frank. Okay, so I hope ये जो हमने किया है ना chapter sketch, this is quite clear to you. ये आपको अच्छे से समझ में आया है, कुछ भी नहीं है इसमें, you just think that it is your diary and you have shared your experience with diary. आपने अपना एक्सपीरियंस जो है वो इसके साथ में किया, ठीक है। और ये उन्होंने किसमें किया, डायरी। एंड स्पेसिफिक थिंग अबाउट द डायरी, जो गूगल फॉर्म जैसे पेपर आता है ना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो आपको याद रखनी चाहिए। वेयर वॉज एनी बॉर्न, एनी वॉज बॉर्न एट फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। ओके, वेयर शी emigrated to Amsterdam. And then whose rule came to Amsterdam, Germany. And किनका persecution वो फ्लू कर रही थी, she was fleeing the Nazi persecution, वो नाजी से बच रहे थे। What's the name of Annie Frank? Annie Frank के फादर का क्या नेम था? Her father's name was Otto Frank. Okay, and where was Annie and her sister transported? They were transported to Hanover in Germany. And on which birthday Annie got a gift from her parents? That is on 13th birthday. What is the gift that she received? It was a diary. Was she excited for the diary? Yes.
She gave a name to a diary, and what was it? It was Kitty. And when she started writing down, what did she write in her diary? About the family members, about the atmosphere, about the academic grades, about the friends, about the boys, etc. Everything. ठीक है? तो ये now later on readers all over the world know it's the diary of a young girl. जिस नाम से इसकी novel है ना, the diary of a young girl. Annie, what is the statement that Annie believes on? Annie believes on that paper have more patience than people. Okay. तो इस तरह की ये जो चीजें हैं ना, ये आपके किसमें आती हैं? गूगल फॉर्म के अंदर आती हैं. रेस्ट भी हम देख लेते हैं, अगर हम 2-3 कुछ कर सकते हैं तो. इसका है love so much, fell ill and died in 1942. Annie की जो grandmother, whom Annie loved so much, grandmother, and when she died in 1942. How she died? She fell ill and died. एनी ने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा? शी रोट अबाउट द रिजल्ट डे, और रिजल्ट डे के लिए वो कैसा फील कर रही थी? शी वॉज फीलिंग टेंस्ड एंड फ्राइटेंड. ओके. एंड शी टॉक्ड टू मच, वो बहुत बोलती थी. दैट इज वाई हर फ्रेंड वॉज एनर्जी हर. एंड एनी जो थी, जब वो बहुत बातें करती थी ना, तो उन्हें सबने क्या नाम दिया था? शी वॉज गिवन अ नेम, दैट इज चैटर बॉक्स. एंड इसीलिए उनको चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए भी दिया. किस टीचर ने दिया? मिस्टर केसिंग ने दिया. ओके. एंड मिस्टर केसिंग उसको क्या पढ़ाते थे? ही वॉज हर मैथमेटिक्स टीचर. एंड द essay, another essay was given by Mr. Kessing to write by Annie, that was quack quack quack. ओके. एंड उसके लिए एनी ने एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी दी. वो स्टोरी किसकी थी? द डक एंड द डकलिंग, फादर डक एंड हर डकलिंग. So according to all these things, we can say the attitude of Mr. Kessing changed, and he stopped punishing, and moreover, he himself had started cracking jokes. So I think it is quite clear to you all. ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है. Is it clear? समझ में आया? If yes, अगर आपको ये बेसिक पूरा conceptualization, we can say the chapter sketch अगर आपको समझ में आया है, तो raise your hand. एंड आफ्टर दिस आई थिंक ये जिस तरीके से आपने समझा है, आई थिंक मुझे आपको ऐसा नहीं लगता है दैट हम इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो हमें बच्चों की तरह इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है. क्या है बच्चों की तरह पढ़ने की जरूरत? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. हमें इस चैप्टर को बच्चों की तरह नहीं पढ़ना है ना? तो ये हम बहुत इजीली कर लेंगे. गुड. एंड आई थिंक इसका तो आपका गूगल फॉर्म भी रेडी हो गया है ना? अगर मैं आपका गूगल फॉर्म का पेपर कल ले लूँ, आई थिंक हमने अभी जो रिवीजन किया है, ये हमारा पूरा गूगल फॉर्म हमने एक तरह से इसका रेडी कर लिया है. तो यू ऑल्सो जस्ट गो थ्रू इट नाइसली. आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे. ठीक है. सो इसका जो अब चैप्टर है, बिकॉज टाइम बहुत रेयर है, तो हम इसको कल ही करेंगे इसको कंप्लीट. एंड अभी हम आप एक बार बात कर लेते हैं. यस, समबडी इज रेजिंग हैंड. अगर कोई क्वेरी है तो पूछो. अमेंडा की कोई क्वेरी है या इसकी कोई क्वेरी है? तो यू कैन आस्क योर क्वेरी. So with this introduction, and we can say the conceptualization of the chapter is quite clear to you all. Text we will be taking in tomorrow's classes. Till then, what you have to do, you have books, text with you, all of you. You also just go through the chapter. So इतना समझने के बाद में whatever you read, I think you are going to understand. So just take up a reading, mark the difficult words, so that in tomorrow's class we can solve those difficult words and we can understand the chapter well. So till then, just take care of yourself, and this is all. Okay, bye bye, and stay home and stay safe and keep studying.